Uh, as per your demand, yesterday we have started with the chapter chemical bonding. And as I stated, this is very fundamental and very conceptual chapter from 11th standard, which is useful in many of competitive examinations like JEE, Neet, JIMR, AIMS, and so many. So in that sense, that way, we need to prepare this chapter well. That is chemical bonding. We have seen, just have the little recap of the topic, what we have seen till date here in this chapter. In chemical bonding, first we have seen what is a chemical bond. It is the force of attraction which holds two or more atoms together in a molecule of compound is called as a chemical bond. The force of attraction which holds two or more atoms together in a molecule of a compound is called as a chemical bond. Now the thing is that how this bond is formed, why this bond is formed, and what are the consequences of bond? These are the questions which arises, and we are finding answers for these questions. First, we come to know that why a chemical bond is formed. According to some theories, one theory comes from thermodynamics. According to that theory, everything is tending towards stability. Every particle, every atom is tending towards stability. And the highest energy containing state is unstable state, whereas the lowest energy containing state is a stable state. So every atom, when react, loses energy and minimize the energy and attain the stability. Second thing, every atom try to attain the nearest inner gas electronic configuration, because noble gases are very stable in nature, and that's why they have a separate place in periodic table, that is 18 group element, because they generally do not take part in the chemical reaction. And the reason behind that is they have completed 8 electrons in their outermost orbit. Now, furthermore, we have seen how bond is formed. There are some theories try to answer this one, and here in this chapter we discuss number one, Lewis-Koshel theory, that is octet rule. Number two, that is VCER, valence electron pair repulsion theory. Number three, that is valence bond theory. Number four, hybridization, and number five is molecular orbital theory. Yesterday we have started with Lewis theory, Lewis and Koshel. So that is electronic theory of valence. The name of chapter is chemical bonding. And we are discussing number one concept, that is called as an electronic theory of valency. And this is for the Lewis and Koshel, that is also called as a Lewis theory. इसके अंदर सबसे पहला जो डिस्कस किया हमने, that is you can say octet rule. Octet rule डिस्कस किया. Octet rule के अंदर हमने देखा एक पॉइंट, that is called as ionic bond. Ionic bond. और दूसरा पॉइंट हम आज डिस्कस करेंगे, that is called as covalent bond. Okay, so that is what we discussed here. So in electronic theory of valency, here Lewis and Koshel considered atom has a two part. Outermost shell is called as a valence shell, and inner shells and nucleus is called as a positively charged kernel. And according to them, this outermost shell participates in the chemical reaction during the formation of chemical reactions, and that may lose, gain, or share electrons. So that is what we are saying. So octet rule is a central theme of this electronic theory of valence. Octet rule is central theme of this electronic theory of valence. So according to octet rule, during a chemical reaction, atom may lose electron, atom may gain electrons, or atom may share electron, so as to complete 8 electrons in its outermost orbit, as like nearest inner gas electronic configuration. The exception is of only helium, because it has 2 electrons, that is duplet completed. Baki, the rest all the noble gases has completed 8 electrons in the outermost orbit. So octet rule के अंदर इतना स्टेटमेंट हमने देखा. Octet rule के आधार पर हमने ionic bond क्या होता है उसके बारे में देखा. कोवैलेंट बॉन्ड आज हमें डिस्कस करना है. आयनिक बॉन्ड के अंदर ये देखा हमने sodium chloride, calcium chloride, magnesium chloride. These are substances which are formed by this ionic bond, that is according to octet rule. And ionic bond क्या होता है? In which this ionic bond, one of the atom loses electrons and forms positive charge ion. Another atom gains electrons, forms negative charge ion. And according to rules of electrostatic, oppositely charged ions are held together due to electrostatic force of attraction, and hence a bond is formed, and that bond is called as an ionic bond. We have seen the formation of sodium chloride. We have seen formation of calcium chloride. Also, we have seen enthalpy, heat release in the in the formation of sodium chloride. How the different energies are involved in that. That is, different enthalpies are involved in that. ये भी हमने उसके अंदर डिस्कस किया. और आज की लेक्चर में चलते हैं हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड एंड रिलेटेड टॉपिक की तरफ और आगे के टॉपिक की तरफ, लेविस डॉट स्ट्रक्चर की तरफ. So
let's come to this covalent bond. So today we'll discuss covalent bond. Okay, so we are here. Covalent bond. There are many examples with which we can explain this covalent bond, but बहुत common example हमारे लिए है. Number one, that is hydrogen plus hydrogen produces H2. This molecule formation can be explained on this basis of covalent bond. Here, electronic configuration of hydrogen shows it has atomic number 1, so it has 1s1 electronic configuration. So अब देखिए दोनों में हाइड्रोजन एटम, इस हाइड्रोजन एटम के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट ऑर्बिट में. सो इस हाइड्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन, दोनों इकट्ठा के शेयर करते हैं और फिर H2 तैयार होता है. सो दिस हाइड्रोजन दिस इज द हाइड्रोजन, दोनों शेयर करते हैं हाइड्रोजन और ये देखिए हाइड्रोजन शेयर किया H बनता है. तो इस हाइड्रोजन को लगता है इसने हाइड्रोजन उसको शेयर कर दिया, इसने भी हाइड्रोजन शेयर कर दिया. हियर सॉरी, दोनों हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है. सो दिस हाइड्रोजन हैज शेयर्ड 1 इलेक्ट्रॉन, दिस हाइड्रोजन हैज आल्सो शेयर्ड 1 इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. आयनिक बॉन्ड में क्या हो रहा था, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा था वन एटम टू अनदर एटम. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होता है, पार्टनरशिप लाइक बिजनेस होता है. सो दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रॉन देता है, एक इलेक्ट्रॉन देता है, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सेंटर में आ जाते हैं. तो इसने एक दिया है और इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है और दोनों को लगता है दोनों इलेक्ट्रॉन्स मेरे हैं. दिस हाइड्रोजन feels both electron belongs to me और दिस हाइड्रोजन feels both electron belongs to me. And this how the hydrogen molecule is formed. बीच में जो डॉट दिखाई देते हैं, ये डॉट इलेक्ट्रॉन्स इंडिकेट करते हैं. So electrons are indicated by dot. This is according to Lewis structure. At the end of covalent bonds हम लोग Lewis structure कैसे ड्रॉ करते हैं, हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे. तो this is Lewis structure of hydrogen atom. Hydrogen atom का Lewis structure है, hydrogen molecule का सॉरी. So this is the hydrogen molecule जिसका Lewis structure है, जहाँ पे दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है. Let's come to the example of oxygen. Second, we can have example of oxygen. So O plus O gives you O2. ऑक्सीजन का होता है. अभी ऑक्सीजन की तरफ वापस चलते हैं हम लोग. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, so its electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p6, sorry 2p4, 2p4. This is the electronic configuration of oxygen. Because there are 8 electrons in the outermost orbit. तो अब अगर हम देखते हैं कि हाइड्रोजन के outermost orbit में यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन दिखते हैं. सेकंड शेल में there are 6 इलेक्ट्रॉन. तो होता क्या है कि अगर हम इनका डॉट स्ट्रक्चर निकालते हैं तो इस ऑक्सीजन में देखिए कि दिस इज द ऑक्सीजन व्हिच हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स. सो ये अंदर के इलेक्ट्रॉन्स है, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स है, ये नहीं दिखा रहा है. आउटरमोस्ट शेल देखेंगे तो सेकंड शेल और सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन सिर्फ दिखाना है. दीस आर 2 and 4 6 इलेक्ट्रॉन्स. तो दिस इज 1 2 3, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, 2 2 2 6 इलेक्ट्रॉन्स, जो यहाँ पे देखिए 2 और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स. इसके अंदर भी वही केस है, 2 3 4 5 and 6. These are 6 electrons. Now, for the bond formation, when these two atoms react with each other, comes closer, both shares 1 electron each. दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं. तो आप देखिएगा, when we draw the structure of oxygen, so this is the oxygen atom, this is another oxygen atom. दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं. So इसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया और इसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया, like this one. Okay, अभी दोनों के बाद 6 थे, बचे 5 इलेक्ट्रॉन्स. तो 5 और ये 2 साथ ही होते हैं, तो इट्स नॉट राइट कॉम्बिनेशन. तो ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, लाइक दिस वन. सो लाइक दिस. तो इसने ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए, इसने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए और बचे उनके पास कितने हैं, 6 टोटल. 6 में से 2 शेयर कर दिए, तो बचे कितने देखिए यहाँ पे 4. यहाँ पर भी बचे कितने हैं 4. अभी क्या होता है ना कि दिस ऑक्सीजन फिल्स, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स मेरे हैं. ये जो पेयरिंग में आ चुके हैं ये कॉमन एरिया में, तो दिस ऑक्सीजन फिल्स बोथ इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू मी. दिस हैपेंस. तो आप देखिएगा यहाँ पर जब देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में आप समझ सकते हैं कि इस स्ट्रक्चर में दिस ऑक्सीजन हैज 6 डॉट्स. शायद आपको डॉट्स दिखाई दे रहे नहीं, आई डोंट नो मोबाइल के ऊपर, बट कोशिश कीजिएगा, मैं उसे थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करता हूँ. सो दीज आर द डॉटेड इलेक्ट्रॉन्स. ओके, लेवी स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन डॉटेड तरीके से दिखाए जाते हैं. तो इस ऑक्सीजन के अराउंड में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सजेस्ट करता है 6 इलेक्ट्रॉन्स है और इस ऑक्सीजन के अराउंड में भी 6 इलेक्ट्रॉन्स है. व्हेन दे रिएक्ट विद ईच अदर, ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए और ये ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है. तो उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए. तो अभी इसके पास बचे कितने देखिए, यहाँ पे 4 बचे. 6 में से 2 चले गए तो 4 बचे. इसके पास भी 6 थे, उसमें से 4 चले गए, यहाँ पे 2 बचते हैं. अभी होता क्या है, इसके ये 2 अपने अपने 2 पेयर और इसके भी ये 2 पेयर अपने. बट ये जो दिखता है सेंटर में पार्ट वाला, ये जो कॉमन पार्ट दिखता है, इस ऑक्सीजन ने 2 शेयर किए, इसने 2 शेयर किए, तो कुल मिला के 4 इलेक्ट्रॉन से दोनों के बीच में शेयर्ड है.
सो व्हेन दैट इज अ शेयर्ड वन, इस ऑप्शन को लगता है चारों मेरे हैं, इसलिए ये लाइन यहाँ पे आता है, इसको लगता है चारों मेरे, और इस ऑप्शन को लगता है चारों मेरे। सो दैट्स व्हाई ऑक्टेट इज कंप्लीटेड जनरली, एंड दैट्स व्हाई दिस इज अ डबल बॉन्ड। यहाँ पे देखेंगे तो दो इलेक्ट्रॉन्स। एक बात यहाँ पे जरूर याद रखिएगा, कभी भी बॉन्ड तैयार करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। किसी भी दो एटम के बीच में बॉन्ड तैयार करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अभी इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स दोनों एक एक शेयर करके आ सकते हैं, या दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक ही एटम शेयर कर सकता है। सो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किसी भी तरीके से हो सकता है। देखिएगा कि बॉन्डिंग के लिए जितने भी दो इलेक्ट्रॉन जरूरी है, दो इलेक्ट्रॉन जरूरी होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड नहीं बनता है, तीन इलेक्ट्रॉन के साथ भी बॉन्ड नहीं बनता। बॉन्ड के लिए, एक बॉन्ड के लिए दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरीज इन केमिकल बॉन्डिंग। किसी भी दो एटम के बीच में बॉन्डिंग के लिए दो इलेक्ट्रॉन जरूरी है। अभी ये दो इलेक्ट्रॉन चाहे तो दोनों एटम एक एक शेयर कर सकते हैं, या तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स कोई तो एक एटम दे सकता है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। ये कैसा ना, देखिए जैसे कि बिजनेस का टाइप होता है, आप समझते होंगे। आपने कभी भी सुना होगा डैड मॉम को, या बड़े घर में जो लोग हैं उनको बातें करते हैं, आप भी करते होंगे कि दो लोग हैं मानो, और दो लोगों को बिजनेस शुरू करना है, तो एक ऐसा तरीका हो सकता है कि दोनों 50% इन्वेस्टमेंट करते हैं। चलो उन्हें अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, दोनों 50,000 इन्वेस्ट करके 1 लाख में बिजनेस शुरू करते हैं। ये एक तरीका है जिसे हम लोग म्यूचुअल शेयरिंग कहते हैं। दोनों ने 50% दिया, 50% दिया, म्यूचुअल शेयरिंग लाइक इक्विवेलेंट बॉन्ड। कभी कभी क्या होता है कि म्यूचुअल शेयरिंग नहीं होता है, दोनों में से एक बंदा होता है जिसके पास पैसा होता है, और हो सकता है एक बंदा होता है जिसके पास आइडिया होता है, पैसा नहीं होता है। सो दोनों इकट्ठा के बिजनेस शुरू करते हैं 50%। एक पूरा पैसा लगाता है, एक पूरा दिमाग लगाता है, और उसके ऊपर पैसा आ जाता है। तो इसमें पूरा पैसा एक ही आदमी इन्वेस्ट करता है। वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का टाइप है, जो इसके अंदर नहीं आता है। मैं बता रहा हूं, मैं बस ये जरूर याद रखिएगा कि बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो चाहे दो इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल शेयरिंग की बात आती है, या एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ना इस यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं दैट इज द कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर कंपल्सरी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन एक बात है, एक बॉन्ड के लिए दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स है, तो हाइड्रोजन के बीच में एक ही बॉन्ड होता है। सो हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, दिस इज H। ये स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं हाइड्रोजन का इस तरीके से। और ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे देखिए 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक बॉन्ड के लिए दो इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स मतलब डबल बॉन्ड आना चाहिए। दिस इज द ऑक्सीजन, सो वी कैन हैव दिस 2 बॉन्ड्स बिटवीन द 2 ऑक्सीजन। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर आता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के साथ दो इलेक्ट्रॉन्स, और डबल बॉन्ड के साथ 4 इलेक्ट्रॉन्स होना जरूरी है। तो याद रखिएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड आता है। तो वी कैन हैव मतलब covalent bond can have the capacity to have a single bond, to have a double bond, to have multiple bonds। सारे मॉलिक्यूल एक्सप्लेन किए जा सकते हैं जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, जिसके बीच में डबल बॉन्ड है, जिसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, या यू कैन से मल्टीपल बॉन्ड है। वो सारे एक्सप्लेन किए जा सकते हैं बेस्ड ऑन द कोवेलेंट बॉन्ड। नेसेसरी एक ही चीज है, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर नेसेसरीली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, 50-50 पार्टनरशिप का ही बिजनेस होता है। दैट्स कॉल्ड यू कैन से कोवेलेंट, तभी जाके कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो ये मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन है जो मैंने कोवेलेंट बॉन्ड के आधार पर आपको बता दिया। और भी एक मॉलिक्यूल है, चलो मैं बता सकता हूं आपको। Cl2 मॉलिक्यूल की बात करते हैं। Cl, ओके, सो दिस इज Cl प्लस Cl gives you Cl, ओके, Cl ये मॉलिक्यूल बनता है Cl2 मॉलिक्यूल। इसके अंदर देखिए ना, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्लोरीन 7, दैट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्लोरीन के आउटरमोस्ट थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिखते हैं आपको? 7 इलेक्ट्रॉन, 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन। थर्ड सेल 3s 3p, आउटरमोस्ट शेल इज थर्ड सेल, इसके अंदर 2 और 5 7 इलेक्ट्रॉन दिखते हैं। तो इसका क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन है। दिस 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 इलेक्ट्रॉन। इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 ये इलेक्ट्रॉन्स। होता क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और ये भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, तब जाके स्ट्रक्चर क्या बनता है। देखिएगा, दिस इज द क्लोरीन, दिस इज अनदर क्लोरीन, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर कर, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर। इसके बचे 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6। इसके भी 1 2 3 4 5 और 6। नाउ दिस फील्स दैट ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर मेरे हैं, और इस तरह के दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे हैं, और इस तरीके से इसके बीच में फॉर्म होता है Cl2 बॉन्ड तैयार होता है। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल, व्हाट वी कैन से हियर। तो ये क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया, इस क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया, दोनों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है, और दोनों इलेक्ट्रॉन इसे लगता है कि मेरे हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन इसे लगता है कि मेरे हैं, बट ऑक्टेट इज कंप्लीटेड।
इस एटम का भी ऑक्टेट कंप्लीट होता है इसे लेके और इस एटम का भी ऑक्टेट कंप्लीट होता है इसे लेके। ऑक्टेट कंप्लीट होने तक रिएक्शन चलता है, यही ऑक्टेट रूल का कहना है। बट if electrons are shared, this is called a covalent bond. So based on the covalent bond we can explain many of the molecule or formation of many of the molecule, we can draw the structures. ये जो structures मैंने draw किए ये सारे Lewis structures, ये सारे Lewis structures है। One of the more structure जो आपके लिए बहुत common है, that is you can say nickel molecule, वो भी आपके लिए draw करना चाहूँगा। Carbon has 4 electrons. This has the carbon which has 4 electrons over here. So this carbon has 4 electrons. Now methane molecule में carbon 4 हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड तैयार करता है। So here is the one hydrogen, here is another hydrogen, here is another, and here is another. अब ये तो 4 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के हैं, because carbon has 4 electrons in the outermost orbit. हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है यहाँ पे, ये हाइड्रोजन एक शेयर करता है यहाँ पर, ये हाइड्रोजन शेयर करता है यहाँ पर, और ये हाइड्रोजन भी शेयर करता है यहाँ पर। Now this carbon feels that all these electron belongs to me. This carbon has completed octet, or this hydrogen has completed duplet. मैं बार बार बता रहा हूँ, इनमें से जिन बच्चों के दिमाग में डाउट आएगा, हाइड्रोजन हीलियम ये दो एलिमेंट इस तरीके से एक्सेप्शनल है जिनमें डुप्लेट कंप्लीट होता है, ऑक्टेट नहीं होता है। सो दे आर वेरी स्टेबल, दीस आर एक्सेप्शनल एलिमेंट। बाकी रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स को देखिए आप यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होते हैं, दैट इज यू कैन से ऑक्टेट। सो दिस इज यू कैन से सिंपली अ कोवेलेंट बॉन्ड एंड द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। नाउ लेट्स कम टू द कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड का डेफिनेशन क्या होता है? सो कोवेलेंट बॉन्ड का डेफिनेशन अगर हम देखते हैं, दैट इज यू कैन से the force of the attractive force which arises between the two particles or two molecules due to mutual sharing of electrons. The attractive force which arises between the two or more molecules due to sharing of electrons having almost similar electronegative power or a small difference in electronegativity. अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है देखिए आप, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कि हर एक एटम का अपना एक इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर क्या है, हमने पीरियोडिक टेबल के अंदर डिस्कस किया था। एवरी एटम हैज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। एवरी एटम हैज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। हर एटम इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, और ये जो खींचने की कोशिश करता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, उसी को